نعرہ رسالت فیضان حضور بحر الفاظ مسلک اعلی حضرت فیضان وارث دیوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زمین پر بیٹھ کر شمش و قمر پر حکم چلتا ہے زمانہ دیکھ کر حیران ہے سلطانی محمد کی زمانہ دیکھ لے عظمت میرے آقا نعمت کی خدا نے خود بلا کے کی ہے مہمانی محمد کی۔ تو میرے آقا جب دیکھیں سمجھنے والی بات ہے، جب عام مسلمانوں کو قبروں میں جانے کے بعد سلام کرنے کا حکم آقا نے دیا ہے، عام مسلمانوں کو سلام کرنے کا حکم آقا نے دیا ہے اور کرتے سب ہیں، تو پھر ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام کیوں نہ عرض کریں؟ اچھا حیرت کی بات ہے جو سلام کو بھی منع کرتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی سلام کرتے ہیں، ہے نا، کرتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عربی جاننے والے وہ سمجھ آپ کو ترجمہ بتائیں گے۔ السلام علیکہ ایھا النبی کا مطلب ہوتا ہے، اگر اس عربی کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا نبی سلام علیکہ، اور اگر اسے اردو میں ترجمہ کیا جائے تو ہوتا ہے اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اور سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب۔ کیا میرے آقا کسی واجب کو چھوڑیں گے؟ امتی سلام کرے وہ آقا جواب نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے۔ اب یہ مقدر کی بات ہے۔ اچھا ہمارے آپ کو ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جب جیسے آپ دو لوگ دوست ہوں، دو دوست ہوں، آپ دونوں میں کوئی بات ہو جائے تو سب سے پہلے کیا بند ہوگا؟ سلام دعا، یہی تو بند ہوگا نا۔ تو سلام دعا کسی سے لڑائی کی بند ہونے کی سب سے، سلام دعا بند ہے تو یہ لڑائی ہونے کی سب سے پہلی دلیل ہے، اور جس کا سلام دعا بند ہوگا اس کا سب کچھ آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ سلام والے۔ تو حضرات بتانا یہ چاہتا تھا، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء مسجد اقصی میں حاضر تھے۔ آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا شاداب صاحب کا کئی دن پہلے ہمارے پاس فون پہنچا تو انہوں نے کہا کہ فلاں تاریخ، ہم نے کہا بھی کہیں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 2-3 جگہ سے فون آیا، پھر ہم نے ان کے پاس فون تاریخ ذہن سے نکل گیا، ہم کیا تاریخ ہے؟ 15 تاریخ ہے۔ پھر ہم ان سے کہتے ہیں بھئی ہمارے ملامہ جانا ہے۔ کسی بھی محفل کو منعقد کرنے کے لیے یا کسی بھی مجلس کو سجانے کے لیے لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سی جگہ پوسٹر چھپا جاتے ہیں، بینر لگوائے جاتے ہیں، ہے نا، دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں، ورنہ فون تو کیا ہی جاتا ہے۔ سب آج جتنے لوگ یہاں آئے سب کو بتائے تو گیا ہوگا کہ آج میلاد ہے، تبھی تو آئے، ہے نا۔ اگر بتایا نہ جائے تو آپ نہیں آتے۔ اتنا تو پاور ہمارے تمہارے اندر نہیں ہے کہ ہم لوگ رہتے ہوں اس محلے میں چھتا ٹولہ میں اور یہ سوچیں کہ یہاں چنگی پہ آج پروگرام ہے عارف بھائی کے گھر پہ، اتنا تو نہیں پاور نا۔ آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تقریباً 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء سب کے سب مسجد اقصی میں موجود ہیں۔ نہ کوئی پوسٹر ہے، نہ کوئی بینر ہے، نہ کوئی فون ہے، نہ کوئی کال ہے۔ حضرات آخر یہ اتنے لوگ جمع کیسے ہوئے؟ اتنے لوگ جمع کیسے ہوئے؟ تو سیدھا سا سمپل سا جواب ہے کہ یہ تو انبیاء ہیں، ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اللہ کے ولی تک اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معراج پر بلا رہا تھا، اللہ اکبر، میرے آقا کو اللہ نے معراج کی رات مسجد اقصی میں امامت کر کے یہ دکھایا، لوگوں دیکھو نبی تو بہت دیکھے ہیں لیکن اب امام الانبیاء کو دیکھو، رسول تو بہت دیکھے لیکن اب سید المرسلین کو دیکھو۔ اور حضرات تمام انبیاء مسجد اقصی میں حاضر ہو کے یہ بتا رہے ہیں، لوگوں جب کچھ ہوتا ہے، لوگوں کو جب محبوب کا جلوہ دکھایا جاتا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ والے اپنی قبروں سے تمام معاملات کو ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ سب کو پتا تھا آج
अभी मस्जिद अक्सा आने वाले हैं, सबके सब पहले ही से यहाँ के इंतजार कर रहे हैं। अब नबी आने वाले हैं, जिब्रील आने वाले हैं, जिब्रील तकबीर कहेंगे, नबी इमामत करेंगे, ताकि दुनिया देख ले कि नबी तो बहुत से हुए हैं लेकिन इमामुल अंबिया हमारे तुम्हारे नबी बनकर इसीलिए कहा सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अगर आज फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, वहां जाते हैं जहां इंसान की अक्ल सोच भी नहीं सकती है, वहां जाते हैं जहां कोई अल्लाह और मेरे रब के महबूब के अलावा तीसरा मौजूद नहीं था। अल्लाह अकबर, उनकी ऊंचाई की बात करने के लिए मेरे इमाम ने जहन दिया था, लोगों सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर के आया हमारा नबी। और जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात, गौर तो करें मेरे भाइयों, नबी की असमत और शान को देखें, जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात, चेहरे की बात नहीं हो रही है, सर की बात नहीं हो रही है, जुल्फों की बात नहीं हो रही है, दस्ते मुबारक की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तलबों की, जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा, है वो जाने मसीहा हमारा, बाबा से बुलंद है वो जाने मसीहा हमारा। तलबों का धोबन है आबे हयात। अगर उस आबे हयात की बात अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा सहाबा इकराम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर होते थे, तो जब मेरे आका वुजू फरमाते थे तो सहाबा उस वुजू के पानी को नीचे टपकने नहीं देते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के पास पहुंचे, पड़ाव डाला हुआ था, मक्के के काफिरों को खबर हुई कि जिन्हें हमने हिजरत करने पे मजबूर कर दिया वो तो अब मक्के पे ही मक्के पे ही आ रहे हैं, मक्के ही वापस आ रहे हैं। लोगों ने दरियाफ्त किया क्या किया जाए। जब मामला काफी पेचीदा हुए तो एक वो शख्स जो मक्के वालों के लिए जासूसी करते थे, वो साहब मक्के से निकलते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वहां पहुंचते हैं जहां सहाबा इकराम रुके हुए थे। देखिए हमारी बात ऐसी होती है कि अगर कोई बातचीत करता है तो फिर हमें सुनाने में मज़ा नहीं आता। अगर कोई ज़रूरी बात है तो कर ली, क्योंकि यहाँ कोई आएगा, बड़ी हैरत हमारे यहाँ क्या होता है पुलवामा में, अगर कोई गिलास लेके यहाँ आएगा ना तो सब उसे ही देखेंगे। अगर चाय आ जाए तो किसी की नज़र वहाँ से हटती नहीं, हालांकि चाय जिसे पसंद भी ना हो तब भी और उसे नज़र रहती, अब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। जब तक वो चले नहीं जाएंगे तब तक नजर रहती। अगर सड़क के किनारे प्रोग्राम हो रहा है तो मोटरसाइकिल भी अगर निकलेगी तो इसे देखेंगे, फिर निकलेगी फिर देखेंगे। मतलब हर चीज से ध्यान, अगर बात तवज्जो से सुनी जाए तो हमें सुनाते भी अच्छा लगता है, वरना हमारी ज्यादा जबरदस्ती वाली नहीं है। आप लोग गौर से सुनिएगा हमारी बातें। क्या मैं बता रहा था आपको, प्रोग्राम बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े मुकर्रिरीन आते हैं, पता है क्या होता है, पब्लिक कहती है यार आज मजा आ गया, मौलाना तो कुर्सी तोड़ के रख दिया, है ना, होता है या नहीं। हमारी बात को बुरा ना मानना कोई, हम बड़े बिल्कुल एकदम खुले हुए मिजाज के हैं, कहते हैं आज बड़ा मजा आया है। इत्तेफाक से अगर कोई गायब हो महफिल से तो सुबह उसे मिलेंगे, चार लोग कहेंगे यार तुम नहीं थे यार, रात तो मजा आ गया, मौलाना ने तो बिल्कुल हिला के रख दिया मजमा, क्या यार तकरीर थी यार, कितनी प्यारी आवाज थी। ऐसे जब कोई बड़ा मुकर्रिर आता है यही कहते हैं ना, और फिर वो कहे यार बड़ा अफसोस करता, फिर वो लड़का कहता है यार हम तो थे नहीं यार, बड़ा यार अफसोस हो रहा है, हम तो सो गए जाके। अच्छा ये बताओ क्या बताया था मौलाना ने, तो यार ये ध्यान नहीं रहा लेकिन तकरीर बड़ी अच्छी थी। ये ध्यान नहीं है कि क्या बयान किया था, लेकिन ये याद है कि तकरीर बहुत अच्छी। यानी हमारी बातों पे तवज्जो नहीं होती, तवज्जो होती है आजकल कलाकारी पे, जो सरासर गलत है, जो सरासर गलत है। फिर वो पूछते हैं कि याद नहीं रहा, तो वो कहते हैं कि यार, एक साहब ने पूछा अच्छा ये बताओ ये दो कान क्यों है,
कान तो एक भी हो सकता था, है ना? भाई एक कान होता तो उससे भी तो सुनाई देता, ये दो कान क्यों है? तो बोले ये इसलिए है कि एक से सुनो, दूसरे से निकाल। तो यही होता है आजकल तकरीरों में। बिल्कुल सही बात है, महफिलों से कोई ज़्यादा ख़ास फ़ायदा नहीं है, खाल खाल कहीं कहीं फ़ायदा हो जाता है। अल्लाह ताला जिसने महफिल सजाई उन्हें सबको बरकतें अता करे, इस घर पे रहमत नाजिल फरमाए। उलमा फरमाते हैं जहाँ मेरे नबी का तस्करा होता है साल भर तक वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। साल भर तक वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहता। मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के बाहर पड़ाव डाले हुए थे, और देखो आप लोग जब देख रहे हैं, बड़ी गौर से देख रहे हैं, उधर ही देख रहे हैं बहुत से लोग, इधर सुनिए आप हजरात। फिर क्या हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के बाहर रुके हुए थे, और मक्के वालों को बड़ी फिक्र हुई कि जिन्हें हमने निकाल दिया था वो आज हमारे शहर में वापस आ रहे हैं। हजरात एक साहब उनके वहां से पहुंचे और देखा, जाके हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे कि देखें क्या हालात हैं इनके, क्या मामला थे इनके। बड़ी जंगें भी हो चुकी थी, मामला बहुत हो चुके थे, फिर भी उन्हें ये था कि अब देखें जाके इनके, चेक करें जाके इनके मामला क्या हैं। वो वहां पहुंचे और जाकर के देखते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कर रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कर रहे हैं और उनके हाथों से पानी टपक रहा है, लेकिन वो देखकर हैरान है कि जो पानी मेरे आका के हाथों से निकल रहा है या जा रहा है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, बल्कि उनके गुलाम उस पानी को आगे बढ़ करके ले लेते हैं। कोई अपने चेहरे पे लगा रहा है, कोई अपने सीने पे लगा रहा है, कोई अपने जिस्म पे लगा रहा है। हजरात एक भी कतरा, बल्कि वो कहते हैं ऐसा लगता था कि ये आपस में लड़ाई कर लेंगे, एक एक कतरे की वजह से कहीं ये लड़ ना जाए। उनका बयान है, वो कहते हैं हमने देखा सबको। हजरात ये मामला देखने के बाद जब उन्होंने ये मामला देखा, फिर दूसरे जायजा को जायजा नहीं किया उन्होंने, बस इतना ही जायजा उनके लिए काफी था। मक्के की सरहद में पहुंचे, ऐलान करते हैं शहर में, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैंने कैसर और किसरा के बादशाहों को देखा है, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में हाजिरियां दी हैं, मैंने बड़े लोगों के ठाठ बाट देखे हैं, मैंने बड़ी उनकी खिदमतें देखी हैं, मैंने देखा है कि उनके ऊपर एक लम्हे के लिए पंखा नहीं बंद होता है, मैंने देखा है कि उनके खुद्दाम आगे पीछे लगे रहते हैं। लेकिन मक्के वालों सुनो, अल्लाह का नबी जो अपने आप को कहता है, वो जो तुम्हारे बाहर रुका हुआ है उसका मामला कुछ और है। जो उनके गुलाम करते हैं, मैंने किसी के गुलामों को करते हुए नहीं देखा है। मैंने देखा है कि उनके जमीन के वुजू के कतरात जमीन पर गिरने नहीं पाते हैं, उनके गुलाम हाथों में लेके लगा लिया करते हैं, उनके गुलाम हाथों में लेकर सीने में लगा लिया करते हैं। और मैं कहता हूं जिसके गुलाम अपने आका से इतनी मोहब्बत करते हैं, उसे अगर पूरी दुनिया मिलकर भी पीछे करने की कोशिश करे वो नहीं हो सकता है। उसका आलम ये होगा, वो जिधर जाएगा अपने झंडे को बुलंद करता चला जाएगा और लोग उसके दामन में समाते चले जाएंगे। अगर तुम्हें खैरियत चाहिए, अगर तुम अच्छा चाहते हो अपने लिए, तो तुम भी अपने नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के उनके गुलामों में शामिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो जब वो आका के तलवों का, हाथों का, चेहरे का धोबन सहाबा इकराम ने अपने चेहरों पे लगाया, सहाबा इकराम ने अपने सीनों पे लगाया, तो पता है आपको अबू कुहाफा का बेटा जिसे दुनिया अबू बकर के नाम से जानती थी, अब वो खाली अबू बकर नहीं है, वो अबू बकर सिद्दीक बने हुए हैं। जिन्हें दुनिया इब्ने खत्ताब के नाम से जानती थी, अब वो उमर नहीं है बल्कि उमर फारूक बने हुए हैं। अब उस्मान सिर्फ उस्मान नहीं है बल्कि जुन्नूरैन और गनी बने हुए हैं। अब अली सिर्फ अली नहीं है बल्कि कायनात के मौला बने हुए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए ईद मिलादुन नबी जब उन तलवों को, धोबन को आका के गुलामों ने चेहरों पे मला तो अल्लाह ने उन्हें अबदी जिंदगी अता फरमा दी। आज हर जुमे को आप जब जुमा पढ़ने जाते होंगे तो ये उलमा इमा खुतबा पढ़ते हैं, खुतबे में मेरे आका का नाम आता है, आका के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है, उनके बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब का नाम आता है, उनके बाद हजरत उस्मान अपने अफ़ान का नाम आता है, उनके बाद हजरत मौला अली का नाम आता है, उनके बाद हसनैन करीमैन का नाम आता है, उनके बाद हजरत फातिमा ज़हरा का नाम आता है, उनके बाद हजरत अब्बास और हजरत हमजा का नाम आता है। मेरे भाइयों क्या वजह है, आखिर इनकी जिंदगियों का मामला क्या है? लोग आए चले गए लेकिन किसी को याद नहीं किया जाता है। हर जुमे को मिंबर पर खड़े होकर पूरी दुनिया के उलमा जब वो खुतबा पढ़ते हैं तो आका के गुलामों का नाम जरूर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आबे हयात को चेहरे से लगाया है, अब ये जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। मेरे
مسیحا